Assalamu alaikum everyone. Uh, Good afternoon here for the probability and statistics class. Hopefully you have done your last lecture yesterday, and today we have to start our third topic of the summarization of quantitative data, in which we will learn about the cumulative frequency distribution, that how we can find out the cumulative frequency distribution. As I told you already, cumulative frequency distribution will be, other than that, the frequency distribution, relative and percentage, which we discussed yesterday, and this one is the relative and percentage frequency distribution. However, cumulative frequency distribution can be formed for the numerical data only, quantitative data, and cumulative frequency distribution will further be divided into the two frequency distributions, which is less than cumulative frequency and greater than cumulative frequency distributions. For the less than cumulative frequency distributions, we will further have its cumulative frequency distribution, relative frequency distribution, and cumulative percentage frequency. Once you will find out the cumulative frequency distribution, you can easily find out its relative frequency and percentage frequency distribution, as you found in the last lecture for the simple frequency distribution. The purpose of the cumulative frequency distribution is to show the number of items which with values less than or equal to the some particular limit. Now, if we talk about the less than cumulative frequency distributions, so for less than cumulative frequency distributions, what is the criteria? Basically, what we have to do up to cumulate means we will show the frequencies up to the sum of the particular limit. Like if for the particular data we want to say that how many of the respondents' invoices lies up to the $79. So $79 means starting from 52 to 79, how many of the respondents' invoices are there. So that is the collective part, basically collective of all these three frequencies or all these classes. So for that cumulative frequency, what we have to do, we will use less than equal to 79. That will show all of the number of the values which lies less than or equal to the 79, और इसकी frequency जो है वो कैसे calculate होगी, we will add all of these three frequencies and that will be shown in front of the less than equal to 79. So that means collective form में जब हम show करते हैं, so this is called the cumulative frequency distribution. So when we are using the less than equal to sign, so that means it's the less than cumulative frequency distribution, and for the greater than equal to sign we have to greater than cumulative frequency. I will tell you that how you can find out the less than cumulative frequency and greater than cumulative frequency. Remember that thing guys, आप लोग इसको note down कर लें कि लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए व्हाट यू हैव टू यूज़, आप इसकी जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है मैं अगेन इसमें शो कर देती हूँ. दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दीज आर द लोअर लिमिट्स एंड दीज आर द अपर लिमिट्स ऑफ द क्लासेस. लोअर लिमिट्स के साथ जो है वो आप लेस देन इक्वल टू का साइन यूज़ करेंगे, और ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ आप अपर लिमिट्स के साथ जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन यूज़ करेंगे. अगेन रिपीटिंग, इसमें अपर लिमिट्स यूज होंगी फॉर लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस, अपर लिमिट्स के साथ लेस देन इक्वल टू साइन यूज करेंगे, और फॉर ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस वी विल यूज ग्रेटर देन इक्वल टू साइन विद द लोअर लिमिट्स ऑफ ईच क्लास. सो उसमें पर्टिकुलरली क्या होगा, जब हम लेस देन इक्वल 59 यूज कर रहे हैं तो डैट मीन्स कि 59 से लेस और इसके इक्वल कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं जो लाई कर रही हैं, एंड यू कैन कैलकुलेट इट बाय दिस कि इफ़ योर डेटा स्टार्ट्स फ्रॉम 52, तो 52 से 59 तक जो है वो 2 ऑब्जर्वेशंस लाई कर रही हैं, तो उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 2 हो जाएगी. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द लेस देन इक्वल टू 69 विच इज़ द अपर लिमिट ऑफ दिस, इसके साथ हम लेस देन इक्वल टू साइन यूज़ करेंगे. तो इसमें क्या होगा कि लेस देन इक्वल टू 69 मीन्स नाउ how many of the observations are there which are less than or equal to 69. So including these two observations जो कि 50 से 59 के बिटवीन लाई कर रही थी, ये भी हमारी क्यूमुलेट पार्ट में ऐड हो जाएंगी, और बाकी की जो 13 ऑब्जर्वेशंस इस ग्रुप में हैं तो ये इन दोनों का क्यूमुलेट सम आ जाएगा. डैट मीन्स 13 + 2 15 ऑब्जर्वेशंस आर देयर विच आर
लेस देन और इक्वल टू 69, तो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 15 हो जाएगी। अब अगर आप लेस देन इक्वल टू 79 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली 70 से 79 के बिटवीन 16 ऑब्जर्वेशंस लाई कर रही हैं। अब इन 16 में प्रीवियस वाली 15 ऑब्जर्वेशंस भी ऐड हो जाएंगी, तो ये 16 प्लस 15 हमारे पास कितना आ जाएगा 31। सो ऑन, इस तरह से आप करके इनकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेंगे एंड यू कैन सी हियर द लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस वन. This is the less than cumulative frequency distribution. As you can see, we are using less than equal to sign with the upper limits of all of the classes of this data. So less than equal to 59 means 2 cumulative frequency, then it's 15, then 31, then 38, 45 and 50. Here you can see that less than equal to 109 means how many of the observations are less than or equal to 109. So if our data starts from 52 and its largest value is 109 and the sample size was 50, so that means all of the values are less than or equal to 109 here. तो ये इसकी cumulative frequency का जो sum है वो last क्लास की cumulative frequency में आ जाएगा and this will show you that you have recorded all of the observations correctly. So ये less than cumulative frequency distribution है. इसकी अगर आपने relative find out करनी होगी तो same procedure पे आप इसकी relative frequency distribution find out कर सकते हैं. That means आप 2 divided by 50 करेंगे, आपके पास 0.04 आ जाएगा. 15 divided by 50 करेंगे 0.30 आ जाएगा. 31 डिवाइडेड बाई 50 करेंगे 0.62 आ जाएगा. डैट मीन्स इन सबको इसके टोटल से डिवाइड करेंगे तो आपके पास इनकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज आ जाएंगी. इनको आप मल्टीप्लाइड बाय 100 करोगे तो क्यूमुलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी. एंड एज आई टोल्ड यू देयर सम्स विल बी लिस्टेड हेयर इन द लास्ट रो ऑफ दैट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. सो गाइस, दिस इज द लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें आप लेस देन इक्वल टू साइन यूज कर रहे हैं अपर लिमिट्स के साथ. अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. सो ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इसके वाइस वर्सा है. उसमें डिफरेंस सिर्फ ये है कि आप अपर लिमिट्स की बजाय लोअर लिमिट्स यहाँ पर यूज़ करेंगे और इनके साथ ग्रेटर देन इक्वल टू साइन यूज़ करेंगे तो वो ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी. लाइक आप अगर इसमें इस तरह से देखें जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है. इसकी अपर लिमिट्स जो हैं वो ये थी. अब हम ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लोअर लिमिट्स यूज़ करेंगे. डैट मीन्स हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू साइन और 50 के साथ. देन ग्रेटर देन इक्वल टू साइन विद 60, ग्रेटर देन इक्वल टू साइन विद 70, ग्रेटर देन इक्वल टू साइन विद 80, 90 एंड 100. सो ग्रेटर देन इक्वल टू 50 मीन्स कि आपके पास कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि 50 से बड़ी और उसके इक्वल हैं. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ विल कैलकुलेट इट्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. सो अगर डाटा हमारा 52 से स्टार्ट हो रहा है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 50, 52 से 109 तक जितनी सारी ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि 50 थी हमारे पास, 50 की 50 ऑब्जर्वेशंस ग्रेटर देन इक्वल टू 50 हैं. तो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी? डैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 50, तो वो पूरा 50 आ जाएगा. अब उसके बाद नेक्स्ट क्लास पे आते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 60. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेटर देन 60. 60 से बड़ी और इसके इक्वल कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं. अब अगर आप 60 से बड़ी डैट मीन्स 60 से लेके 109 तक सारी ऑब्जर्वेशंस का क्यूमुलेट शो करना चाह रहे हो, इसका एक ऑल्टरनेटिव वे है कि आप इन सबको ऐड कर दो तो आपके पास इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी इस क्लास के लिए. उसका ऑल्टरनेट वे ये भी हो सकता है कि आपके पास टोटल 50 ऑब्जर्वेशन थी, उसमें से आपने प्रीवियस वाली जो 2 ऑब्जर्वेशन हैं इनको माइनस कर दिया तो आपके पास रिमेनिंग रह जाएंगी 48. सो ये 48 ऑब्जर्वेशन होंगी जो कि 60 to 60 ग्रेटर देन और इक्वल टू में लाई करी हैं. डैट मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60 हमारे पास 48 ऑब्जर्वेशन आ जाएंगी. ये इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी. इसके बाद नेक्स्ट क्लास की जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 70 के साथ, तो 70 और उससे बड़ी जितनी ऑब्जर्वेशंस हैं तो आप इन सबको ऐड कर दोगे 16 + 7 + 7 + 5, तो ये इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी. और इसका ऑल्टरनेट ये है कि टोटल में से आप पिछली दोनों क्लासेस की जो फ्रीक्वेंसी है उसको माइनस कर दो तो रिमेनिंग आपके पास इसकी क्यूमुलेटिव आ जाएगी. ये दोनों तरीके आप इसमें यूज़ कर सकते हैं. इसी तरह से आप ग्रेटर देन इक्वल टू
80 की भी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लोगे। ग्रेटर देन इक्वल टू 80 मीन्स कि 80 से बड़ी और उसके इवन कितनी ऑब्जर्वेशन हैं, तो इन तीनों का सम आप कर लोगे। फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 90 इन दोनों का सम कर लोगे, एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 100 जो है वो ये 5 ऑब्जर्वेशन आ जाएंगी। सो अगर आप इसमें नेक्स्ट डे क्लास एक्सटेंड करें तो इसकी लेट सपोज कि यहाँ पर आपके पास एक क्लास बनती है जिसकी लोअर लिमिट आपके पास 110 आती है, तो अब ग्रेटर देन इक्वल टू 110 जो है वो क्या उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी, दैट विल बी 0। क्यों? क्योंकि हमारा डाटा जो है वो 109 तक है और हम 110 की बात कर रहे हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू 110 कितनी ऑब्जर्वेशन हैं, तो उसमें कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, इसलिए उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो 0 आ जाएगी। तो डैट मीन्स दिस इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। लेस देन की आपके पास लोअर लिमिट्स, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में अपर लिमिट्स यूज होंगी लेस देन इक्वल टू साइन के साथ। ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू साइन यूज होगा विद द लोअर लिमिट्स, और इसमें उनकी इसी तरह से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की आप रिलेटिव और परसेंटेज दोनों फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। गाइस आप इसको प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करके अगर कोई इशू हो तो आप लोग मुझसे उसमें पूछ लीजिएगा। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस को बेसिकली प्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जो ग्राफ यूज होता है वो ऑगिव है। ऑगिव कैसे बनता है? इट्स सेम लाइक हिस्टोग्राम। इसमें हमारे पास जो है वो 2 एक्सिस यूज होते हैं। लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कि ये है, इसको शो करने के लिए आपके पास जो ग्राफ यूज होगा वो लेस देन ऑगिव होगा, और जो ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आप बनाएंगे उसको शो करने के लिए जो ग्राफ यूज होगा वो ग्रेटर देन ऑगिव होगा। अब ग्रेटर देन ऑगिव और लेस देन ऑगिव कैसे ड्रॉ करना है? ऑगिव इज अ ग्राफ ऑफ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डाटा वैल्यूज शोन ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आप सारी डाटा वैल्यूज ले लोगे, जस्ट लाइक जैसे आपने हिस्टोग्राम में किया था। आप क्लास बाउंड्रीज भी यूज़ कर सकते हैं, आप क्लास लिमिट्स यूज़ करेंगे यहाँ पे। अब आपने क्या करना है, शोन ऑन द वर्टिकल एक्सिस आपकी अपनी मर्जी है, आप इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज भी ले सकते हो, क्यूमुलेटिव की रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज भी यूज़ कर सकते हैं, और क्यूमुलेटिव की परसेंटेज फ्रीक्वेंसीज भी। इन तीनों में से आप कोई भी एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करोगे वाई एक्सिस पे, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था हिस्टोग्राम में कि वाई एक्सिस पे आप कोई भी एक फ्रीक्वेंसी यूज़ करेंगे और इसके साथ उसकी पर्टिकुलर स्केलिंग कर लेंगे। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ अबव ऑफ एनी ऑफ द क्लास इज प्लॉटेड एज अ पॉइंट। हिस्टोग्राम में आप क्या करते थे कि आप एक फ्रीक्वेंसी की हाइट का जो है वो बार ड्रॉ कर देते थे, लेकिन यहाँ पर आप क्या करेंगे कि सिर्फ एक उसकी फ्रीक्वेंसी के कोरिस्पॉन्डिंग एक पॉइंट प्लॉट कर दोगे, और आफ्टर प्लॉटिंग ऑल ऑफ द पॉइंट्स यू कैन कनेक्ट देम बाय यूजिंग अ स्ट्रेट लाइन, तो आपके पास इसका ऑगिव बन जाएगा। हियर यू कैन सी कि इसका ऑगिव जो है वो इस टाइप का बनेगा, दिस इज द लेस देन ऑगिव। डैट मीन्स अगर आपके पास फर्स्ट क्लास लेस देन इक्वल टू 50 थी, तो लेस देन इक्वल टू 50 पे आपकी उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 0 होगी। फिर उसके बाद लेस देन इक्वल टू 59 पे आपके पास आ जाएगी और उसकी फ्रीक्वेंसी डैट वाज 2, तो आपने 2 के कोरिस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक पॉइंट प्लॉट कर दिया। देन लेस देन इक्वल टू 69 है, तो 69 पे इसकी फ्रीक्वेंसी थी 15, आपने 15 के ऊपर रख के यहाँ पर एक पॉइंट प्लॉट कर दिया, एंड इसी तरह से सारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को आप यहाँ पर प्लॉट करते जाओगे। लेस देन इक्वल टू 79 आपके पास जो है वो ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो सारी प्लॉट हो जाएंगी। लाइक 15 के बाद आपके पास नेक्स्ट 31 आ जाता है, 31 के बाद 38 आता है, देन 45 आता है और 50 आता है। हेयर यू कैन सी डैट के क्यूमुलेटिव की परसेंटेज फ्रीक्वेंसी शो की हुई है, तो इस वजह से इसकी स्केलिंग 20, 40, 60, 80 और 100 पे है। तो अगर आप क्यूमुलेटिव की परसेंटेज फ्रीक्वेंसीज देखो तो ये इसकी परसेंटेज फ्रीक्वेंसीज हैं जो कि 4, 30, 62, 76, 90 और 100 है। तो इन्हीं सबको यहाँ पर प्लॉट किया गया है 4 एंड देन अप टू सोन, ये सारी इसकी फ्रीक्वेंसीज जो हैं क्यूमुलेटिव परसेंटेज यहाँ पर प्रेजेंटेड है। इनको जब आप प्लॉट कर लोगे तो ये पूरा इसका लेस देन ऑगिव बन जाएगा। गाइस इसी तरह इसी के कोरस्पॉन्डिंग अगर आपने ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो है वो ग्राफ बनाना होगा तो उसका ऑगिव जो है वो वाइस वर्सा बनेगा। डैट मीन्स वो हाईएस्ट से लोवेस्ट पे यहाँ से आएगा और ये यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। तो डैट मीन्स ये क्रॉस एक्स आपके पास पूरा जो है वो इसका बन रहा होगा, और जहाँ पर ये दोनों ऑगिव्स इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, वो पॉइंट इसका जो है वो मीडियन का पॉइंट होगा। डैट मीन्स इट्स द मीडियन वैल्यू। आगे चल के जब हम 3rd चैप्टर में मीन मीडियन मोड जो है वो स्टार्ट करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि मीडियन इसका जो है वो कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। सो देर आर द 2 ways, वन बाय यूजिंग द फॉर्मूला एंड सेकेंड वन इज यू कैन यूज दीज 2 ऑगिव्स
दोनों ऑगिव्स को जब आप सेम प्लेन पे ड्रॉ करोगे तो जहाँ पर ये ऑगिव एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे तो आपके पास उसका जो है वो क्या होगा, मीडियन पॉइंट हो जाएगा। उसको आप एक्स एक्सिस से मैच करोगे तो वो आपका उसका मीडियन पॉइंट आ जाएगा विच लोकेट्स द सेंटर ऑफ द डाटा। तो आपने ये करना है कि आपने दोनों ऑगिव्स को सेम प्लेन पे ड्रॉ करना है। लेफ्ट साइड से राइट साइड पे जाएगा लेस देन ऑगिव, और राइट से लेफ्ट डाउनवर्ड सिचुएशन में आएगा दैट विल बी ग्रेटर देन ऑगिव। तो ये दोनों सेम प्लेन पे ड्रॉ हो जाएंगे। आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर दोबारा मैं आपको जो है वो इसमें एक्सप्लेन कर दूंगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स आई विल टेल यू दैट बाय यूजिंग एक्सेल हाउ वी कैन फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन relative and percentage on Excel. But before that I want to explain you the chapter 3, and before going to the chapter 3 ये इसका लास्ट टॉपिक है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। हम इसको जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस क्या है? As I told you, this is the technique which is other than the frequency distribution. So अगर आप frequency distribution में डेटा को प्रेजेंट नहीं करना चाहते हैं तो आप इसकी सिंपलेस्ट टेक्निक यूज़ कर लेते हैं जो कि एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस है, जो कि सिंपल अरिथमेटिक और इजी टू ड्रॉ पिक्चर है, जो कि डेटा को क्विकली समराइज कर सकती हैं। एंड दिस वन सच टेक्निक इज कॉल्ड स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले। अब स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले बेसिकली क्या है इसको हम यहाँ पर शो करते हैं। स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले बेसिकली रैंक ऑर्डर में और शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्लेन करती है। इट्स सिमिलर टू द हिस्टोग्राम ऑन इट्स साइड बट इट हैज़ द एडवांटेज ऑफ शोइंग द एक्चुअल वैल्यूज। जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं तो उसका ड्रॉबैक ये है कि हमारे पास एक्चुअल वैल्यूज जो हैं वो शो नहीं होती हैं, वो लॉस्ट हो चुकी होती हैं। वी जस्ट ग्रुप दोज वैल्यूज इन द ग्रुप्स और हम उनकी फ्रीक्वेंसीज को शो कर देते हैं। लेकिन स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले में यू कैन सी द ओरिजिनल वैल्यूज इन दिस डिस्प्ले। सो इसमें होता क्या है कि आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, दिस इज द वर्टिकल लाइन लाइक दिस, और इसके लेफ्ट साइड पे आप स्टेम पार्ट रखते हैं और राइट साइड पे जो है दिस इज द लीफ पार्ट। अब आपने बेसिकली करना क्या है कि द फर्स्ट डिजिट ऑफ ईच डेटा आइटम आर अरेंज टू द लेफ्ट ऑफ द वर्टिकल लाइन एंड द रिमेनिंग सेकेंड डिजिट विल बी ऑन द राइट ऑफ द वर्टिकल लाइन। अगर आपके पास हंड्रेड्स में वैल्यूज हैं तो देन आप जैसे 109 है तो आप 10 यहाँ लिखोगे और 9 लिखोगे, फिर 104 है तो 10 यहीं पर होगा लेकिन 4 उसमें नेक्स्ट में आ जाएगा। तो इस तरह से डाटा वैल्यूज अरेंज होंगी और आप उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। लाइक अगर ये यहाँ पर 8, 5 और 7 लिखा हुआ है, डैट मीन्स द फर्स्ट डिजिट ऑफ द वैल्यू इज 8 एंड द सेकेंड डिजिट ऑफ द वैल्यू इज 5। सो डैट मीन्स दिस कंप्लीट ऑब्जर्वेशन इज 85 जिसको हमने यहाँ पर शो किया हुआ है। अब नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन 87 है, तो 87 क्योंकि 80s में ही लाई कर रही थी तो उसका 8 वन टाइम ही लिखा रहेगा, लेकिन उसके लीफ में यहाँ पर सेकेंड डिजिट आ जाएगी। अब अगर हमारे पास सेकेंड ऑब्जर्वेशन के बाद थर्ड ऑब्जर्वेशन लेट से होती है 88, तो 88 में आप क्या करोगे, 8 यहाँ पर लिखा हुआ है, जस्ट यहाँ पर 8 मेंशन कर देंगे तो वो 88 आ जाएगा। सो इस तरह से जब आप ऑब्जर्वेशंस का वो पूरा सीक्वेंस बना देते हैं तो ये स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले होता है। यहाँ पर जैसे ये 3-4 ऑब्जर्वेशंस आपके पास लिखी हुई हैं, दीज आर 93, तो 93 को 9 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है। 96 नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन थी तो 9 इज स्टिल हेयर और ये 6 आ जाएगा। डैट मीन्स उसका स्टेम एक ही है लेकिन उसमें डिफरेंट लीफ वैल्यूज़ में आपके पास जो है वो डिफरेंट वैल्यूज़ आ जाएंगी। फिर 97 है, फिर 98 है, तो ये चारों वैल्यूज़ एक स्टेम के साथ डिफरेंट लीव्स में शो हो जाएंगी। तो इस वजह से इस डिस्प्ले को हम कहते हैं दिस इज द स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले। अब सिंगल लीफ यूनिट्स हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे अभी एक्सप्लेन किया, अगर तो टेंस में है, सिंगल डिजिट इज यूज टू डिफाइन ईच लीफ। इन द प्रीसीडिंग एग्जाम्पल द लीफ यूनिट वॉज 1 एंड लीफ यूनिट्स में भी 100, 10, 1.1 एंड सो ऑन। अगर आप उसमें मेंशन करना चाहें तो ऊपर स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले में आप उसका यूनिट मेंशन कर सकते हैं। वेयर द यूनिट लीफ यूनिट इज़ नॉट शोन इट इज़ अज्यूम्ड टू बी 1, तो वो 1 ही होता है। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास जैसे ये कुछ एग्जांपल मैं करवा देती हूँ। लीफ यूनिट इसमें हमने मेंशन किया हुआ है विच इज़ 0.1, मीन्स हम यहाँ पर पॉइंट्स शो नहीं करेंगे, ऊपर हमने मेंशन कर दिया। सो इट विल बी शोन कि उसके जो लीफ के बाद जो स्टेम के बाद जो लीफ यूनिट्स होंगे वो सारे के सारे पॉइंट्स में हैं। इफ़ वी हैव द डाटा वैल्यू सच एज, अगर इस किस्म की हमारे पास डाटा वैल्यूज़ हैं जैसे 8.6 है, 11.7 है, 9.4 है, 9.1 है, 10.2, 11.0 एंड 8.8, तो देन स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले इन वैल्यूज़ का कैसे बनेगा। हम यहाँ पर लीफ स्टेम में जो है वो 8 ले लेंगे, लीफ यूनिट हमने 0.1 रख दिया।
अब 8.6 वैल्यू थी, तो 8 हम यहाँ पर लिखेंगे, 6 हमने यहाँ लिख दिया, लीफ यूनिट ऊपर डिफाइंड है, सो दिस इज़ 8.6। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू 8.8 है, 8 यहाँ पर मेंशन है ऑलरेडी, पॉइंट ऊपर है, और 8 यहाँ मेंशन कर देंगे, सो दिस इज़ 8.8। ये इसको शो करने का मेथड है। देन दिस इज़ 9.1, 9.4, 10.2, 11.0 एंड 11.7। तो ये हमारे पास इसके सारे लीफ यूनिट्स आ गए। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले ऑफ हडसन ऑटो रिपेयर। ये जो अभी हमने एग्जांपल की थी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज के लिए जो डाटा हम यूज़ कर रहे थे, जिसमें इनवॉइसेस हैं कॉस्ट ऑफ इंजन ट्यूनर पार्ट्स की, तो इनके स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले को हम कैसे शो करेंगे, इनके स्टेम्स में जो है वो हम उसकी सारी वैल्यूज़ ले लेंगे। लाइक अगर हमारे पास 52 और 57 दो वैल्यूज़ हैं, तो 5 उसका स्टेम आ जाएगा और 2 और 7 उसके लीफ यूनिट्स आ जाएंगे। इसी तरह से 6 पे है, 62 हमारे पास 4 टाइम्स था, तो 6 हम यहाँ मेंशन करेंगे और 2 यहाँ पर 4 टाइम्स आ जाएगा। डेट मीन्स दिस इज 62, 62, 62 एंड 62। तो ये अप टू सॉन करके आप पूरा इसका स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले शो कर सकते हैं। दिस इज़ द स्ट्रेच्ड फॉर्म। अगर आप इसको मोर स्ट्रेच फॉर्म करना चाहते हैं उसकी, तो लीफ यूनिट को आप हाफ वे डिवाइड भी कर सकते हैं। डैट मीन्स कि आपने उसमें क्या किया कि 52 और 57 फर्स्ट 5 डिजिट्स फर्स्ट हाफ में आ जाएंगी, नेक्स्ट 5 डिजिट्स नेक्स्ट हाफ में आएंगी। जैसे वैल्यूज़ अगर बहुत ज़्यादा हैं तो उनको आप 2 हाफ्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। डैट मीन्स 60 से 64 के बिटवीन यहाँ पर है, फिर 65 से 69 के बिटवीन यहाँ है, देन 71 से 74 तक यहाँ होंगी और 75 से 79 तक यहाँ ऑब्जर्वेशंस हैं। दिस इज़ 80 to 84 एंड 85 to 89, ये सारी ऑब्जर्वेशंस आ जाएंगे एंड दिस इज़ कॉल्ड द स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले। गाइस दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर 2, जिसमें टेबुलर और ग्राफिकल प्रोसीजर है। ये पूरी हमने समराइजेशन जो डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स कंप्लीट किया है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेटिस्टिक्स, ये ओवरऑल इसका चार्ट है। सबसे पहले हमने डाटा किया था कि डाटा हमारे पास 2 टाइप्स का होता है, क्वालिटेटिव डाटा है एंड देन क्वांटिटेटिव डाटा है। क्वालिटेटिव डाटा की जो डिस्क्रिप्शन है वो हमने की टेबुलर मेथड्स में और ग्राफिकल मेथड्स में। टेबुलर में हमने उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, रिलेटिव की और क्रॉस टेबुलेशन इसमें आपका नहीं है, बार ग्राफ किया और पाई चार्ट किया। क्वांटिटेटिव डाटा में आप टेबुलर मेथड्स और ग्राफिकल मेथड्स ले रहे हैं। पहले आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किया, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, देन क्यूमुलेटिव रिलेटिव एंड क्यूमुलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और उसी के अगेंस्ट जो आपने डॉट्स प्लॉट किए, आपने हिस्टोग्राम बनाया, आपने ऑकिव किया। स्कैटर डायग्राम मैंने आपको नहीं करवाया, दिस विल नॉट बी इंक्लूडेड। और लास्ट में हमने किया स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले। क्रॉस टेबुलेशन एंड स्कैटर डायग्राम विल नॉट बी इंक्लूडेड इन योर चैप्टर। रिमेनिंग इज द चैप्टर 2 विच यू हैव कंप्लीटेड। अब मैंने आप लोगों को जो असाइनमेंट दी थी क्वांटिटेटिव डाटा की यस्टरडे, उसमें आप लोग नेक्स्ट उसकी असाइनमेंट में ऐड कर लें कि आप लोगों ने उन्हीं 2 डाटा की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बनानी है, लेस देन क्यूमुलेटिव और ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव, और उसके कोरस्पॉन्डिंग आप क्यूमुलेटिव रिलेटिव, क्यूमुलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी फाइंड आउट करेंगे, और उसके साथ उसका लेस देन ऑगिव और ग्रेटर देन ऑगिव दोनों को सेम प्लेन पे ड्रॉ करके आप उसका मीडियन जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट 3rd चैप्टर जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। दिस वाज for the chapter 2 today. If you have any queries, you may email me or question here in the class section. Good luck guys. Take care.